हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू एजुकेशन वायर पर। आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश पैसेज को सॉल्व करेंगे। जिस प्रकार से हम लोगों ने हिंदी के पैसेज को सॉल्व किया, सेम वैसे ही इसे भी सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग एक दो क्वेश्चन को पढ़ेंगे और इसके बाद अपने पैसेज को रीड करेंगे, फिर उसी हिसाब से आंसर निकालेंगे। और आपको एक ज़रूरी सूचना देनी है कि 7 AM पर आपको डेली क्लासेस मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग टाइम निकाल करके 7 बजे क्लास देख लीजिएगा। पूरा प्रयास रहेगा कि 7 बजे तक क्लासेस आपको दे दी जाए। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या क्या इसमें दिया गया है। Read the following statements and choose the correct option. Reach out camps are week-long summer camps that are organized all across the world. Young people in the age group of 12-17 years attend these camps. Young people come to learn leadership skills. और यहाँ पर क्या दिया गया, वाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम्स टू दीज कैंप्स। अब हमें इससे क्या पता चला, कैंप्स वगैरह के बारे में कुछ बात होने वाली है। तो अब हम लोग पढ़ते हैं अपने पैसेज को और फिर समझेंगे कि क्या बोला गया है इसमें। रीच आउट is an organization that runs week-long summer camps designed to give young people the skill to be the leaders of the future. The camps helps to create confident young people who wish to improve not only themselves but the world around them. Varying in age from 12 to 17, young people come to attend the camps in Canada and the USA from across the world. They spend their time learning leadership skills, considering and discussing important issues such as pollution and health and helping in the local community. They also meet many other people who have the same interests and beliefs and frequently make friendship that will last a lifetime. There is no average day at the camp and changes are made to the timetable, which is handed out daily to allow room for exciting events as they come up. However, camp members generally get up at 7 AM and once they have eaten breakfast, starts their day with outdoor games to get them warmed up for the busy day ahead. There are workshops in the morning on skills such as public speaking, and then there an hour for lunch at noon. For 1 hour in the afternoon, camp members have the opportunity to select from various activities that include dancing, yoga, basketball, and songwriting. During the time at camp, there is a day known as Action Day. This is when small groups go out with an adult group leader to work with organizations in the neighborhood. Reach out. This can involve organizations dealing with housing, journalism, healthcare, or the environment, to name just a few. Evenings are spent watching documentary films or listening to guest speakers. The aim is to encourage the young people to go out and make the world a better प्लेस, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग अच्छे तरीके से अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, आपको टाइमर भी दे दिया जाएगा और फिर मैं लास्ट में बताऊंगी आपको कि इन सभी का आंसर क्या होगा, मतलब क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। तो चलिए आप लोग पहले इसे पढ़िए और आपको टाइमर दे दिया गया है। 15 सेकंड का टाइम आपको मिलेगा। स्टार्ट। टाइम अप। देखिए क्वेश्चन है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट, इनकरेक्ट इस पर आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा एग्जाम में। पहला ऑप्शन है रीच आउट। कैंप्स आर वीक लॉन्ग समर कैंप्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। दूसरा है यंग पीपल इन द एज ग्रुप ऑफ 12 and 17 years attend these camps. थर्ड है दीज यंग पीपल कम टू लर्न लीडरशिप स्किल्स। अब हम लोग चलते हैं अपने पैराग्राफ पर और फर्स्ट लाइन में ही
फर्स्ट या सेकंड लाइन में ही हम लोगों ने इसे देखा था। देखिए यहाँ बताया गया है कि डिजाइंड समर कैंप्स डिजाइंड टू गिव यंग पीपल द स्किल्स टू बी द लीडर्स ऑफ द फ्यूचर। ठीक, तो आल वाला तो पहला गलत हो जाएगा। दूसरा क्या था, 12 to 17, तो ये देखिए सही है। वेरिंग इन एज फ्रॉम 12 to 17, फिर लीडरशिप स्किल था ना, दे स्पेंड दियर टाइम लर्निंग लीडरशिप स्किल। तो इस प्रकार से अपना क्या हुआ, इसमें ऑप्शन नंबर ए गलत है, ये वाला रॉन्ग है, और बी और सी सही है। तो बी सी देखिए ऑप्शन दो में ये बी सी सही है और ए गलत है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप सभी लोगों का आंसर सही होगा, और गलत है तो कोई बात नहीं है, आप लोग प्रैक्टिस करिए मेरे साथ, प्रैक्टिस से ही चीज़ें सीखी जाती है। दूसरा क्वेश्चन आप लोग पहले खुद से पढ़िए, क्योंकि आपको ही एग्जाम देना है, आपको ही वहाँ जाकर पढ़ना है। तो अच्छे से आप लोग रीड करिए, और फिर मैं आपको 15 सेकंड का टाइम दे रही हूँ। स्टार्ट। एक पैसेज ही आज हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि टाइमर देने से टाइम ज़्यादा लगता है। टाइम अप। देखिए दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाई डू यंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड कम टू दीज कैंप्स। ऑप्शन है टू इम्प्रूव देमसेल्फ एंड द वर्ल्ड अराउंड देम, फॉर फन एंड फ्रेंडशिप, तो इसके लिए तो नहीं आए थे अभी जब हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पैसेज। टू वाइल अवे दियर टाइम, नहीं। टू इम्प्रूव दियर लीडरशिप स्किल्स ओनली, तो हम लोगों ने लीडरशिप के अलावा भी कई स्किल्स देखी थी ना, तो ये तीनों गलत। राइट आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए, टू इम्प्रूव देमसेल्व्स एंड द वर्ल्ड अराउंड देम। ठीक है, अब आप लोग तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करिए, और टाइमर भी इसके लिए दे दिया गया आपको, 15 सेकेंड का टाइम है आपके पास। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन है टू प्रिपेयर देमसेल्व्स एंड गेट वार्म्ड अप फॉर द बिजी डे अहेड द यंग पीपल ईट अ हैवी ब्रेकफास्ट, या फिर गेट अप एज अर्ली एज 7 AM, या पार्टेक इन सम आउटडोर गेम्स, या अटेंड वर्कशॉप। तो पैसेज ही हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए क्या दिया गया है, गेट अप at 7 AM and once they have eaten breakfast start their day with outdoor games to get them warmed up for the busy day ahead। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, partake in some outdoor games। क्वेश्चन नंबर 4 खुद से पढ़िए आप लोग, और आपको टाइमर दिया गया 15 सेकेंड का टाइम। स्टार्ट। टाइम अप। क्वेश्चन क्या है, इन द आफ्टरनून विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज कैन कैंप मेंबर्स नॉट सेलेक्ट, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, बास्केटबॉल एंड सॉन्ग राइटिंग, डांसिंग एंड योगा, बास्केटबॉल एंड डांसिंग। तो इसको हम लोग पैसेज में ही देखते हैं, यहाँ लास्ट लाइन में ही दिया गया है, इसीलिए मैं अंडरलाइन भी करी थी। देखिए members have the opportunity to select from various activities that include dancing, योगा, बास्केटबॉल एंड सॉन्ग राइटिंग, लेकिन यहाँ पर स्पीकिंग नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन अपना क्या दिया गया था, स्पीकिंग करके कुछ दिया गया था, क्या है, योगा एंड पब्लिक स्पीकिंग, तो नॉट सेलेक्ट। राइट आंसर अपना ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 5, और इसके लिए भी आपको टाइम दिया गया 15 सेकेंड का टाइम। स्टार्ट। टाइम अप।
The camps are justified named reach out because young people find it exciting to reach the camping site. और दूसरा दिया गया है members are encouraged to collaborate with neighborhood organization या they are action packed throughout the day या फिर young people work under group leader। तो आप लोग पैसेज को ही देखिए यहाँ पर। This is when small groups go out with an adult group leader to work with organization in the neighborhood. Reach out. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, मेंबर्स आर encouraged to collaborate with neighborhood organization। फिर अगला क्वेश्चन पढ़िए आप लोग, इसमें टाइमर देने की आवश्यकता है नहीं, छोटा क्वेश्चन आप लोग जल्दी से पढ़ लीजिए। ऑल द 7 days एट द कैंप आर एक्शन डेज। दूसरा है प्लान्ड इन अ वे टू कोलैबोरेट विद लोकल ऑर्गेनाइजेशन या फिर टायरिंग एंड एवरेज, नॉट द सेम रूटीन वाइज। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, नॉट द सेम रूटीन वाइज। ऑल द 7 days एट द कैंप आर नॉट द सेम रूटीन वाइज। फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ये 2 ग्रामर के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे हम लोगों ने हिंदी के गद्यांश पद्यांश में देखा था, उसमें भी 1-2 आपको ग्रामर के क्वेश्चन मिले थे, सेम इंग्लिश में भी आपको ऐसे मिलेंगे। इजी क्वेश्चन होंगे, आप इजीली कर ले जाएंगे। क्या है? आइडेंटिफाई द अंडरलाइन वर्ड्स पार्ट ऑफ स्पीच इन द सेंटेंस गिवन बिलो। दे आल्सो मीट मैनी अदर पीपल हु हैव द सेम इंटरेस्ट एंड बिलीव्स। क्या क्या है इसमें? एडवर्ब एडजेक्टिव, एडवर्ब नाउन, कंजंक्शन वर्ब या फिर प्रीपोजिशन नाउन। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ब एंड नाउन। अगला क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द वर्ड एनालॉजी कॉन्फिडेंट साई। एवरेज का क्या हो जाएगा? विलो पार, सिमिलर, एक्स्ट्राऑर्डिनरी। राइट आंसर यही है, एवरेज का एनालॉजी एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन के क्वेश्चन को सॉल्व किया। साथ ही हम लोगों ने सीखा कि पैसेज को हमें रीड कैसे करना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेना है, जिससे थोड़ी बहुत जानकारी हमें मिल जाए कि अपने पैसेज में रहने वाला क्या है, और फिर उसी हिसाब से हम लोग अच्छे से पैसेज को रीड करेंगे। धीरे धीरे करके ये सारी चीज़ें सीखी जाती है। आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो एक ना एक दिन आप लोग ज़रूर सीख जाएंगे। अभी आपके पास टाइम है, अच्छे से प्रैक्टिस करिए और अपने एग्जाम को क्वालिफाई करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए प्रैक्टिस सेट के साथ। थैंक यू सो मच। जय हिंद।